Hi, this is Prince sir and you are watching Phenol Institute of Chemistry. So today we are just going to learn about the chemical kinetics in which integrated rate equation zeroth order हमने लिया था. अब आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और उसके बाद वाले टॉपिक्स. लेट्स सी. सो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह से हम बिहेव करेंगे. सो रिएक्शन जा रहा है R2P, राइट. रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन जा रहा है तो उसके लिए हम dr upon dt मतलब रेट we will write in this way that rate is equal to minus dr by dt is equal to k. Now r raised to n is the formula, but n for the first order we will write n is equal to 1. We will write n is equal to 1. So for this we will write the rate is equal to minus dr upon dt is equal to k r raised to 1 now. So हम क्या करते हैं, r dr upon r we are just writing in this way and minus sign on this way, this side. So k into dt. Now we will keep the integration 0 to r. So dr by r is equal to minus k 0 to t into dt, right? It's so simple that this equation will be solved by keeping the value ln r, because this is the equation of integration. इंटीग्रेशन के अंदर आप dr by r is equal to क्या लिखिएगा, ln r. So minus k t प्लस जिस तरह से हमने जीरोथ ऑर्डर के अंदर कंसिडर किया था वैसे ही यहाँ पे integration constant we will keep, that is I. So if we start with the 0 time t is equal to 0, so we will write time t equals to 0. So for that time ln r we will write that is ln r naught, because we are dealing with the initial concentration and initial concentration is r naught. So we will write here ln r naught. For time t equals to 0, this whole term will be 0. So I is equal to ln r naught. We will write here that ln r is equal to minus kt. What we have done, just keeping the value, substituting the value of I in this equation, that ln r naught. R naught is called initial concentration of the reactant. R is the t time concentration of the reactant. So this is y is equal to mx plus c type graph. So when we just draw this graph, ln r versus time t, the graph is obtained in this way. This intercept is equal to what? So intercept is always c, that is ln r naught is the intercept, minus slope we will get, slope it is m and that is k. So minus slope we will get, that is k. Now this is ln is a natural log. Now convert it into the log. So natural log to log equation is that ln r is equal to 2.303, which is called 303 log to the base 10 of r. अब ये ln की वैल्यू मैंने सिर्फ लिखी है. ln का मतलब क्या है, 2.303 log to the base 10. तो हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पूरा लिख देते हैं. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा log to the base 10 of r. ठीक है, 2.303 मल्टीप्लिकेशन के अंदर है. सो 2.303 इंटू log to the base 10 of r माइनस के टी प्लस 2.303 इंटू log to the base 10 of r. यहाँ पे r नॉट होगा. तो हम सारे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं. दोनों इक्वेशन को 2.303 से हम डिवाइड करेंगे. जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आंसर क्या हो जाएगा. तो आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. द आंसर इज log to the base 10 of r is equal to minus k upon t 2.303 plus log to the base 10 of r naught. So here we will also draw the graph. इसके जैसा ही सेम ग्राफ आएगा.
लेकिन अब बात ये है कि स्लोप जो है ना वो k अपॉन 2.303 मिलेगा। तो अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं कि के टी हम इस साइड ले लेते हैं 2.303, ठीक है, ये मैंने इस साइड ले लिया, तो log टू द बेस 10 ऑफ आर नॉट माइनस log टू द बेस 10 ऑफ आर हो जाएगा। We know that log a minus log b is equal to log a by b, so log to the base 10 a upon b, मतलब कि r naught is a, r is b, तो r naught अपन क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, और kt अपॉन 2.303, k को ही सब्जेक्ट बना देते हैं, रेट कांस्टेंट को, अल्टीमेट इक्वेशन 2.303 अपॉन t log to the base 10 is r naught upon r. This is your final equation. So first order integrated rate equation का जो rate constant है उसका equation क्या है, 2.303 upon t log to the base 10 r naught upon r. So what is the meaning of the half life? Half life it means that say suppose मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल मैं इसको शार्पन कर देता हूँ तो 15 डेज के अंदर वो आधी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो 15 डेज इज कॉल्ड माय टी हाफ, टी हाफ से इंडिकेट करेंगे इसे, इस तरह से टी हाफ लिखेंगे, सो टी हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम, मतलब कि और 15 दिन में वो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जब हाफ हो जाता है, कह सकते हैं ना ऐसे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जब हाफ हो जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, उतने टाइम को हम कहते हैं टी हाफ। सो टी हाफ हम अलग अलग इक्वेशन के लिए लिखते हैं, जैसे कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, सो जीरोथ ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हमने के निकाला था, के का इक्वेशन क्या था, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, हम टी टाइम के लिए लिखते हैं इसलिए टी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अपॉन टी था, राइट, टी k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब हम क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू टी हाफ लिखते हैं, हाफ लाइफ टाइम, तो r जो है अपना r दैट विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द आर नॉट। अब इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर नॉट, जैसे आगे बताया मैंने कि जब टी हाफ होता है दैट इज द हाफ लाइफ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है r, सो वी विल कीप द वैल्यूज, तो r नॉट माइनस वी विल राइट दैट हाफ ऑफ द आर नॉट अपॉन टी की जगह हम टी हाफ लिख देते हैं, टी हाफ को सब्जेक्ट बना देते हैं तो k नीचे आ जाएगा, ठीक है, और आर नॉट को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, सो आर नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, एंड 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, सो अल्टीमेटली आर नॉट अपॉन 2k, टी हाफ क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2k। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या होगा, T half is independent of the R naught for the first order reaction, मतलब समझा देता हूँ मैं कि जैसे जीरोथ ऑर्डर के रिएक्शन के अंदर हमने इक्वेशन लिया ना कि T half इज इक्वल टू R naught अपॉन 2k, वैसे अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे, सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वी विल राइट द इक्वेशन जैसे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 R naught अपॉन r, ओके, सो आर नॉट अपॉन आर लिखते हैं, आर टी भी लिख सकते हैं टी टाइम के ऊपर आर का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन टी इज इक्वल टू अपने क्या लेते हैं, टी हाफ लेते हैं, सो व्हेन वी राइट टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ द आर नॉट। सो अब हम इक्वेशंस रखते हैं इसके अंदर ही, देन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह पे हम लिखेंगे टी हाफ लॉग टू द बेस 10 आर नॉट अपॉन हाफ ऑफ द आर नॉट, सो आर नॉट यहाँ पे कट हो जाएंगे, 1 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सो 2.303
टी हाफ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो टी हाफ अपॉन के हो जाएगा। सो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2, और लॉग 2 होता है 0.3010, सो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। सो टी हाफ का आंसर फाइनली 0.693 अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, 0.693 अपॉन के। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरोथ ऑर्डर के इक्वेशन क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के। उस केस के अंदर हम आर नॉट लिखते थे, यहाँ पे तो आर नॉट आया ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Pseudo first order means what? Pseudo का मतलब है false, right? तो pseudo first order reaction पहले मैं आपको समझा दूं कि this is the second order reaction. Pseudo zeroth order is a first order. Pseudo first order is a second order. Pseudo second order is a third order. मतलब कि आपको एक टर्म इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है और pseudo है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर मीन्स 1 + 1 = 2, इस तरह से आंसर देना है। ऐसे इक्वेशन हम क्यों लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। इस केस के अंदर आप ध्यान से इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फोकस करिए। ये है 10 मोल्स, ये है 0.01 मोल। सो ये 10 मोल्स के अंदर से 9.9 मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 0.01 पूरे खत्म हो गए। सो रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो पूरा खत्म हो रहा है, या तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन काफी लो है। तो रिएक्टेंट जहां पे बहुत ही ज्यादा है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई चेंजेस भी आपको नहीं मिलेंगे। तो H2 के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। मतलब टाइम t = 0 ये इतने हैं, पहले तो स्टार्टिंग के अंदर रिएक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो आपको 0 ही लेना है। लेकिन जब कुछ टाइम जाएगा तो 0.01 से ये तो पूरा खत्म हो रहा है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो H2O के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको कंसीडर करना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की, जहाँ पे एक का कॉन्सेंट्रेशन काफी लो है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है K' CH3COO2H5 H2O तो 1 + 1 = आंसर क्या आएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 ही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन छोटा है, स्मॉल है, लो है, इसलिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हम K लिख सकते हैं, K कितना है, तो K = K' × H2O। ठीक है, लेकिन यूनिट और फाइनल यूनिट तो आपको सेकेंड ऑर्डर के ही लिखना है, बिकॉज इट इज स्यूडो फर्स्ट, स्यूडो मीन्स 1, फर्स्ट मीन्स 1, तो 1 + 1 = 2, तो यूनिट तो सेकेंड ऑर्डर के ही आएंगे। ये तब यूज होगा कि जब एक कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई है, एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तब ये स्यूडो वर्ड यूज होता है। सो मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कॉलिजन करते हैं एंड फ्रूटफुल कॉलिजन्स उनके प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया है कि आर्हेनियस इक्वेशन इज K = AE⁻ EA/RT। इसके अंदर K क्या है, K है अपना रेट कांस्टेंट, A इज आर्हेनियस कांस्टेंट एंड E इज ऑन द बेस ऑफ द लॉग। तो EA is the activation energy, minimum energy required to start the reaction is called activation energy, and R is a gas constant and T stands for temperature। अब हमें ये कंसीडर करना है कि टेम्परेचर के साथ K किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। सो ऐसे केस के अंदर मैं एग्जांपल ले लेता है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं लेता हूँ H2 + I2 इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द HI। तो जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो एक्चुअली कैसा होता है कि HH + II इस तरह से ज्वाइन होता है और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है कि जिसके अंदर जो पुराने बॉन्ड्स है ना वो टूट जाते हैं, मतलब कि वो वीक हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं इस तरह से।
तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है एंड फाइनली ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी HI के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ इस तरह से जाता है। तो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर पहले कंपाउंड जो है H2 प्लस I2 वो एनर्जी खुद गेन करता है। गेन इसलिए करते हैं ताकि उनके अंदर रिएक्शन हो सके। तो H2 एंड I2 पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं। इतनी हम कह सकते हैं, इतनी जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं ना, उसे हमें सप्लाई करना होगा। जैसे हम हीट दे रहे हैं, राइट, कोई कैटालिस्ट सप्लाई कर रहे हैं, देन ये एक्टिवेशन एनर्जी हम कंपाउंड्स को दे रहे हैं, रिएक्टेंट्स को दे इसलिए रहे हैं ताकि वो रिएक्शन आगे बढ़ सके। एंड फाइनली एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये बन रहा है एंड फाइनली ये कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी HI मिल जाएगा। सो ये है बात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने जो एनर्जी सप्लाई की ना, EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मिनिमम एनर्जी सप्लाई, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, तो इसे हम कहेंगे EA से इंडिकेट कर रहा है इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी HI मिलेगा। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर की एंड कॉलिजन के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द कॉलिजन। नॉर्मल केस के अंदर मॉलिक्यूल्स, जब गैस के मॉलिक्यूल्स है तो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन के ऊपर इस तरह से रहते हैं एंड देन आफ्टर वो वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेट होने लगते हैं, फिर इनके अंदर एनर्जी गेन होती है। काइनेटिक एनर्जी गेन होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी एनर्जी गेन करते हैं। एक पॉइंट आता है, राइट, एक पॉइंट आता है कि अपनी पोजीशन के ऊपर इतना एक दूसरे के नजदीक आता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के साथ टकराने से पहले, बस ये टकराने ही वाले हैं, कॉलिजन होने ही वाला है, तब जो स्पीड होती है, तब जो एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कहते हैं इसे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं इसे, काइनेटिक एनर्जी। सो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज इन कॉलिजन, बस होने ही वाला है। उससे पहले की, थोड़ी से पहले की सिचुएशन, जब एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं तब ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तब ये ग्राफ नीचे उतर जाता है। सो ये ग्राफ थोड़ी देर बाद वापस 0 से स्टार्ट होके ऐसे चलता ही रहता है। सो ये पॉइंट, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट वो पॉइंट है कि जब हर एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब अपनी पोजीशन के ऊपर वो इस तरह से टकराने वाले हैं, उसके पहले की, जस्ट पहले की सिचुएशन है। बस एक बार ये टकराव होगा, एक बार ये कॉलिजन होगा, उसके बाद ये नीचे उतर जाएंगे। सो ये टाइम T के ऊपर है। अब हम 2 अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मैं लेता हूँ, टेम्परेचर T1 है, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर T2 है, दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने डिफरेंस रखा है 10 डिग्री सेल्सियस का। तो 10 डिग्री सेल्सियस का ये जो टेम्परेचर का चेंज है, मानो कि ये ग्राफ था अपना, वो है 45 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ, कि जब 45 डिग्री सेल्सियस मैंने कांस्टेंट रखा। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा जो ग्राफ है मैं चेंज कर रहा हूँ। ये ग्राफ मैं यहाँ से सीधा इसी तरह से नीचे उतर जाएगा, फिर वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, देन एट 55 डिग्री सेल्सियस हर एक मॉलिक्यूल जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फास्ट हो जाएगी, पहले से ही फास्ट होगी, बिकॉज ऑफ द हाफ kT स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है एंड 55 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल जल्दी स्पीड में आ जाएगा, इसलिए इनका कॉलिजन भी फास्ट हो जाएगा। कॉलिजन फास्ट हो जाएगा तो इतना प्रोबेबल स्पीड आपको मिलेगा ही नहीं, पहले से ही ग्राफ थोड़ा सा नीचे उतरेगा एंड देन आफ्टर इतना नीचे उतरेगा।
तो अगर मैं इनको 0 तक मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो इतना जो पोर्शन है प्रोडक्ट का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ कहने की बात ही ये मेन थी कि इतना जो प्रोडक्ट है आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इतना प्रोडक्ट का पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। रीज़न यही है कि हर एक मॉलिक्यूल पहले से ही स्पीड में होता है, इसलिए थोड़े बहुत जो यहाँ पे रह गए थे, जो यहाँ पे कॉलिजन नहीं कर पाए थे, यहाँ पे तो वो भी कॉलिजन करने लगे और सीधा इनके अंदर टकराव होने लगा। जैसे ही कॉलिजन हुआ ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो थोड़े से मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा टकराने को मिलेंगे, ज्यादा कॉलिजन यहाँ पे मिलेगा। ज्यादा कॉलिजन मिलेगा इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस है। So to take in the mathematical representation k is equal to e raised to minus ea by rt, हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला है ही। अब हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन के अंदर हम नेचुरल लॉग का एप्लीकेशन करते हैं। जैसे ही आप नेचुरल लॉग लगाएंगे ln की हो जाएगा, ln की इज इक्वल टू ln a माइनस e गायब हो जाएगा, उसकी जगह पे माइनस ea अपॉन rt हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं 2.303 log to the base 10 of k is equal to 2.303 log to the base 10 of a minus ea upon rt। अब 2.303 को हर एक टर्म से निकाल देना है मुझे। इसे मैं क्या करूँगा, 2.303 से सबको डिवाइड कर दूंगा। 2.303 मतलब ea अपॉन 2.303 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2.303 कट गए तो आंसर इक्वेशन के अंदर होगा log to the base 10 of k log to the base 10 of a minus ea upon 2.303 r into 1 upon t अलग से लिखेंगे, बिकॉज इफ आई ड्रॉ द ग्राफ तो ये है y इज इक्वल टू mx, x हमारा 1 upon t है, प्लस c हमारा इंटरसेप्ट है, और ये भी हमारे ग्राफ के फॉर्म में ले सकते हैं। ln k इज इक्वल टू log to the log ln a माइनस e अपॉन r 1 अपॉन t। सेम ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, बिकॉज दोनों केस के अंदर हमारा जो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला जो m है ना वो स्लोप है, एंड दैट इज माइनस ea बाय r यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस ea बाय 2.303 r। ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चले। नोट्स तो मैं शेयर करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से और पता चले। ठीक है, सो log टू द बेस 10 हम क्या कर रहे हैं, k वर्सेस ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 1 अपॉन t का। तो आपको ग्राफ फिर से डाउन टू द स्लोप मिलेगा, बिकॉज इंटरसेप्ट हमारा log टू द बेस 10 ऑफ a है। इंटरसेप्ट इज log टू द बेस 10 ऑफ a। ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, सो नेगेटिव स्लोप लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस ea अपॉन 2.303 r। ओके, दिस इज द ग्राफ। एंड अब हम दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी वर्क करते हैं कि टेम्परेचर T1 के ऊपर, T2 के ऊपर अगर कोई चेंजेस है तो उनके लिए यहाँ पे क्या फैक्टर होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे मानो कि एक टेम्परेचर ले लेते हैं T2, तो log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस हमारा जो इक्वेशन था वैसे ही हमें इक्वेशन करना है ea अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन हम क्या लेते हैं, T2 ले लेते हैं। तो जब T2 लेते हैं तब रेट कांस्टेंट अपना क्या होता है, K2 होता है। वैसे ही log टू द बेस 10 ऑफ K1 ले लेंगे इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस ea अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, log टू द बेस 10 K2 माइनस log टू द बेस 10 K1 कर देना है। ओके, मैथमेटिकल टर्म्स है सिर्फ और कुछ नहीं है। सो K2 जिसके अंदर log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस, देखो K2 जो है ना वो पहले है, इसलिए ये वाला टर्म हम पहले लिखेंगे ea अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T2 माइनस माइनस प्लस, तो log टू द बेस 10 ऑफ a तो माइनस ही रहेगा तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा ea अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T1। अब log a माइनस log b आगे भी बताया मैंने, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a by b। तो अल्टीमेटली इक्वेशन बनता है अपना log
K2 अपॉन K1 इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बन रहा है, इसके अंदर मैं EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 हो जाएगा ना, बिकॉज T2 जो है ना, तो सॉरी यहाँ पे T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा, बिकॉज माइनस टर्म जो है हम यहाँ से यहाँ पे ले लेंगे और कुछ नहीं, और T1 प्लस है इसलिए आगे लिखा है मैंने, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन। जो मैं इक्वेशन डिराइव करना था वो थी टेम्परेचर डिपेंडेंस थियरी। सो अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर डिपेंडेंस थियरी, अगर हम टेम्परेचर का चेंज सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन का रखते हैं तो इनका जो रेशियो है वो डबल हो जाएगा। या ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है जब 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन का चेंज होता है तब। सो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिएक्शन, अगर कोई एक रिएक्शन लेता है जैसे 2KClO3 is a catalyst, 2KCl plus 3O2. So catalyst does not take part in the reaction, but it makes reaction faster. It alternates the rate of reaction. So इसका मतलब ये है कि कोई एक ग्राफ ले लेता है, जैसे यहाँ से रिएक्टेंट है, मैंने रिएक्टेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये प्रोडक्ट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी, इतना टाइम आपको लगेगा जब कैटालिस्ट यूज नहीं किया है। ओके, सो अगर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो बस इतने में ही रिएक्शन खत्म हो जाता है, मतलब कि EA डैश, तो EA इज अनकैटालिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड EA डैश इज अ कैटालिस्ट रिएक्शन की एनर्जी है, मतलब कि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम कर देती है। जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए कैटालिस्ट का काम करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये जो पढ़ाई है वो तो आप अपने आप भी कर सकते थे, थियरीज लर्न कर सकते थे, थियरीज रट सकते थे, लेकिन मैंने एक बार यहाँ पे समझा दिया कि भाई इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, आपको तुरंत समझ में आ गया, लेकिन मैं एग्जाम के अंदर आपके साथ बैठ के फिर आपकी थियरीज नहीं लिख सकता। दैट इज माई पार्टिसिपेशन, सो दैट इज नॉट माई पार्टिसिपेशन अल्टीमेटली, मतलब मैं आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता एग्जाम के अंदर, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। सो कैटालिस्ट भी इस तरह से हेल्प कर रहा है, MnO2 इज एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर रहा है बस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमको पैसे खर्च करने हैं, इसको गर्म करना है, कोयले लाने हैं, तो हमारी ये एनर्जी ये बचा देता है, तो कैटालिस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे है इफेक्ट ऑन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। सो डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, सो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर कैटालिस्ट का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं करवाता वो। इक्विलिब्रियम बस आपको सिर्फ फास्ट अटेन करवा देगा, बिकॉज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन जल्दी हो जाएगा तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी जल्दी करवाएगा, सो इक्विलिब्रियम जल्दी सेटअप करवा देता है, एंड डेल्टा जी के ऊपर रिएक्शन के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेता। सो कैटालिस्ट अल्टीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी कम करवा देता है, रिएक्शन फास्ट करवा देता है, बाकी प्रोडक्ट्स के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। The last is the collision theory. In the case of the collision theory हम रिएक्शन ले रहे हैं R2P, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रहा है, मानो कि रिएक्टेंट्स दो है, यहाँ पे A एंड B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट C के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कितनी बार कॉलिजन करते हैं, एंड दैट मस्ट बी द फ्रूटफुल कॉलिजन, मतलब कि आपको ये जो A एंड B है जितनी बार एक दूसरे के साथ टकराएंगे उतनी बार ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेट इक्वल्स टू ZAB, ZAB इज इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कितनी बार एक दूसरे के साथ टकराते हैं, then it is called collision frequency factor e raised to minus EA by RT। so ZAB अल्टीमेटली ये भी इंडिकेट करता है कि A B के साथ कौन सी डायरेक्शन के साथ टकराएगा, एंड ये प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम कंसिडर करें SN2, तो उसके अंदर सिर्फ बैक साइड से अटैक इज पॉसिबल, फ्रंट साइड अटैक से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। सो अगर ये बात मुझे समझानी है तो मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे P ऐड कर रहा हूँ, मतलब P इज जस्ट नथिंग बट इट इज अ
द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जैसे ही अपने ऐड कर देंगे, एक इक्वेशन लेते हैं, SN2 का ही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे CHHH मिथाइल ब्रोमाइड, अल्टीमेटली रिएक्शन क्या है, CH3Br प्लस OH माइनस कन्वर्ट होके बनना चाहिए CH3OH प्लस Br माइनस। इट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन, Br माइनस बिंग अ गुड लिविंग ग्रुप, तो छोड़ के चला जा रहा है। लेकिन अगर OH माइनस का प्रॉपर अटैक हुआ तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या, प्लेसमेंट। ओके, तो मानो कि OH माइनस अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, हमको पता है कि फ्रंट साइड से अटैक नहीं होगा बिकॉज Br की जो लोन पेयर्स होगी वो फ्रंट साइड से OH माइनस को एंटर नहीं होने देती। तो ऐसे केस के अंदर प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ऐसे केस के अंदर आपको प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है जिसके अंदर OH माइनस फ्रंट साइड से नहीं बट बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इस तरह से पहले तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कि जिसके अंदर कार्बन H Br एंड OH, तो यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की 5 हो जाती है। तो जल्दी से ये इंटरमीडिएट इज जनरेटेड फॉर द मिलियंथ पार्ट ऑफ सेकेंड अकॉर्डिंग टू द वन बिलीफ। तो अब ये तुरंत ही कन्वर्ट होके पूरा जो इन्वर्जन हो जाता है कि Br यहाँ पे था, अब OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया, डेक्स्ट्रो से कंपाउंड लेवो में कन्वर्ट हो गया। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी 1 होगा, तब आपका जो आंसर है वो रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड भी कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट वाज द कॉलिजन थियरी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड सारी जो थियरीज है उनकी नोट्स मैं शेयर करता हूँ, नोट्स एक बार लिख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, आ जाएगा समझ में। बाय बाय।